بلرن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے امریکی الیکشنز کے حوالے سے۔ امریکہ میں ٹرمپ کارڈ چل گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ 45ویں کے بعد 47ویں صدر بھی منتخب ہو گئے۔ 538 الیکٹورل ووٹوں میں سے ٹرمپ نے 277 الیکٹورل ووٹ حاصل کیے۔ کملا ہیرس 226 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکی۔ کسی بھی امیدوار کو جیت کے لیے 538 میں سے 270 الیکٹورل ووٹ درکار تھے۔ الیکٹرز 17 دسمبر کو صدر اور نائب صدر کو ووٹ کاسٹ کریں گے۔ 6 جنوری 2025 کو الیکٹورل ووٹوں کی گنتی ایوان نمائندگان میں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری 2025 کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ امریکی تاریخ میں ایک بار پھر خاتون امیدوار صدر نہ بن سکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار خاتون امیدوار کو شکست سے دوچار کیا۔ ٹرمپ نے 2016 میں ہیری کلنٹن کو بھی شکست دی تھی۔ کیملا ہیرس کو شکست۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے شکست تسلیم کر لی۔ ڈیموکریٹک امیدوار کیملا ہیرس نے صدارتی انتخاب میں شکست تسلیم کر لی ہے۔ شکست کے بعد حامیوں سے خطاب نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح، کیملا ہیرس ہار گئی۔ ڈیموکریٹک پارٹی نے شکست تسلیم کر لی۔ ڈونلڈ ٹرمپ 538 الیکٹورل ووٹوں میں سے 276 ووٹ حاصل کر کے فتح یاب ہوئے۔ کیملا ہیرس 223 الیکٹورل ووٹ حاصل کر سکیں۔ سپر پاور امریکہ میں ٹرمپ کارڈ چل گیا۔ 47ویں صدر منتخب، کیملا ہیرس کو شکست۔ دسمبر کو صدر اور نائب صدر کو ووٹ کاسٹ کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے 20 جنوری 2025 کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ فتح کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، جاری جنگیں ختم، کوئی نئی جنگ شروع نہیں کروں گا۔ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے۔ امریکہ نئی بلندیوں پر پہنچے گا۔ تمام معاملات ٹھیک کریں گے۔ ملک کو محفوظ، مضبوط اور خوشحال بنائیں گے۔ امریکہ میں جو بھی آئے گا وہ قانونی طریقے سے ہی آئے گا۔ ہم نے سینٹ کا کنٹرول بھی واپس حاصل کر لیا ہے۔ That will allow us to make America great again. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. ڈونلڈ ٹرمپ الیکٹورل ووٹوں کے ساتھ ساتھ پاپولر ووٹ میں بھی آگے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ووٹوں کی تعداد 7 کروڑ سے زائد۔ کیملا ہیرس کو اب تک 6.5 کروڑ سے زائد ووٹ ملے ہیں۔ 2016 میں ٹرمپ پاپولر ووٹس میں شکست کے باوجود الیکٹورل ووٹوں کی بنیاد پر صدر بنے تھے۔ امریکہ میں ایک بار پھر خاتون امیدوار صدر نہ بن سکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری بار خاتون امیدوار کیملا ہیرس کو شکست سے دوچار کیا۔ ٹرمپ نے 2016 میں ہیلری کلنٹن کو بھی شکست دی تھی۔ عالمی رہنماؤں کی ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ولی عہد محمد بن سلمان نے مملکت اور امریکہ کے درمیان تمام شعبوں میں تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی مشترکہ خواہش پر زور دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردگان، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی، مصری صدر فتح السیسی اور کی جانب سے بھی ٹرمپ کو مبارکباد دی گئی۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی شاندار انتخابی جیت پر مبارکباد دی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ چین باہمی احترام کی بنیاد پر امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھے گا۔ امریکہ کے لیے چین کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور صدر مسلم لیگ نون نواز شریف لندن سے جنیوا پہنچ گئے۔ نواز شریف 3 روز جنیوا میں قیام کریں گے۔ 3 روز قیام کے بعد نواز شریف لندن واپس جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز پاکستان سے سیدھا جنیوا جائیں گی۔ مریم نواز گلے کا علاج کرا کر نواز شریف کے ہمراہ لندن جائیں گی۔ رہنما تحریک انصاف رؤف حسن کا کہنا ہے، ریپبلکنز کے اقتدار میں آنے سے ہمیشہ پاکستان سے تعلقات بہتر رہے۔ پی ٹی آئی دور میں بھی امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے رہے تھے۔ بانی پی ٹی آئی واپس آئیں گے اور وزیر اعظم بھی بنیں گے۔ مزید کہا، ملک میں نام کی جمہوریت ہے، ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایک میجر ہنڈرنس ہوگا اگر امریکہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات، جو مطلب ریپبلکن ایڈمنسٹریشن یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ اس کے راستے میں کوئی ہنڈرنس بنے گی۔ خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ واپس آئیں گے تو پرائم منسٹر بھی بنیں گے، تو جو ہے جمہوریت سے یہ ٹوکریسی کے نہج تک پہنچ چکا ہوا ہے۔ اب ہم جمہوریت کو ہم خیر بات کہہ چکے ہوئے، یہ جمہوری ملک رہا نہیں ہے، اب صرف نام کی جمہوریت ہے۔ اب اس میں باقی سب کچھ جو ہے وہ ٹوکریسی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اب مجھے آج وہ شراز صاحب کو پکڑ لیا، ہمارے ایم این اے کو، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ تمام اہداف جو حاصل کر چکے ہوئے ہیں، بندوں کو ابڈکٹ کر کے، بندوں کو جو بھی کر کے، میں کن میں نہیں پڑھنا چاہتا، تو آج ہمارے وہ جو ایم این اے ہیں اس کو ابڈکٹ کرنے کا کیا اس کی کیا وجہ؟ اب اور اہداف ہیں کچھ۔ پنجاب میں اسموگ نے خطرناک صورتحال اختیار کر لی۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے 4 ڈویژن میں 17 نومبر تک تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کر دیا۔
पंजाब में गर्दालूद फजा ने सब कुछ बंद करा दिया। जहरीली स्मोक के बाइस पंजाब के 4 डिवीजन्स में तालीमी इदारे बंद। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चिन्योट, झंग, टोबाटेक सिंह, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल में स्कूल और इंटरमीडिएट कॉलेज 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। 7 से 17 नवंबर तक तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल कर दिए गए। लाहौर में स्मोक की शरह 1133 की सतह पर पहुंच गई। राजस्थान, बीकानेर, जयपुर और दिल्ली से आने वाली स्मोक ज़दा हवा लाहौर और मज़ाफ़ात को मुसलसल मुतासर करने लगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने मुकम्मल लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा 10 दिन तक स्मोक की सूरत हाल इसी तरह रहेगी। बुनियादी सरकारी दफातर में 50% वर्क फ्रॉम होम करने का फैसला किया गया है। 10 दिन तक के बाद आइंदा कलाहे अमल का ऐलान करेंगे। ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। ज़राअत और सनतों में स्मोक के तदारुक के लिए खुसूसी स्क्वाड तैनात कर दिया गया। पंजाब में स्मोक ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली। पंजाब हुकूमत ने सूबे के 4 डिवीजन में 17 नवंबर तक तमाम तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया। आगे बढ़े, आपको बताएं सलीम खान नए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिए गए। सलीम खान 3 साल के लिए रजिस्ट्रार के तौर पर फराइज सर अंजाम देंगे। नए तैनात होने वाले रजिस्ट्रार सलीम खान पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के साबिक अफसर हैं। सलीम खान चीफ जस्टिस याया अफरीदी के दौर में पेशावर हाई कोर्ट के भी रजिस्ट्रार रह चुके हैं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मौजूदा रजिस्ट्रार जजीला असलम को डेपुटेशन पर तैनात किया था। ट्रंप के कहने पर बानी पीटीआई की रिहाई हुई तो उसकी सियासत खत्म हो जाएगी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का कहना है पीटीआई वाले कहते थे कि हमारी हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराई गई। पीटीआई की सियासत तो अमेरिका मुखालिफ एजेंडे पर कायम है। पीटीआई इसे वक्त पर अपने बयानिए की नफी कर रही है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई फौजदारी और सिविल केसेस ज़ेर समाअत। एक अदाकारा को रकम देने के लिए कारोबारी दस्तावेजात को बदलने के इल्जाम में न्यूयॉर्क की अदालत ट्रंप को मुजरिम करार दे चुकी। 26 नवंबर को सजा सुनाए जाने का इम्कान। केस में 4 साल तक की कैद की सजा दी जा सकती है। ट्रंप के सदारती इलेक्शन जीतने के बाद समाअत मुलतवी होने का भी इम्कान है। ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा और जॉर्जिया की अदालतों में भी मुतअद्दिद केस हैं। ट्रंप के वकला की तरफ से सदारती इस्तिस्ना का सहारा लेने की कोशिश का इम्कान है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के सदर बनने के बाद भी अदालतों में उनके खिलाफ सिविल केसेस की समाअत जारी रह सकती है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला के दरमियान गवर्नर हाउस में मुलाकात में पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और सूबे के मुताबिक दीगर मसाइल हुकूक के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाक से क़याम अमन और सिक्योरिटी के लिए दस्तियाब वसाइल के हसूल के लिए दोनों मुत्तहिद होकर कोशिश पर इत्तफाक किया गया। सूबे में सयाहत के फरोग और अवामी दिलचस्पी पर भी तबादला ख्याल किया गया। और मौलाना फजल रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर से गुज़श्ता रोज मुलाकात की कहानी। मौलाना के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकवे। मौलाना फजल रहमान ने कहा पहले मेरे बारे में अपनी पार्टी के अंदर तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। आपका जनरल सेक्रेटरी हो या वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में कुछ भी कह देते हैं। मौलाना फजल रहमान बोले आपकी अपनी पार्टी के अंदर ही कोई सिस्टम नहीं है। इन हालात में मैं कैसे साथ चलें। असद कैसर ने एहतजाजी तहरीक में भी शामिल होने की दावत दी। मौलाना ने फिलहाल इनकार कर दिया कि मैं अभी मुल्क से बाहर जा रहा हूं, मुझे सोचने का वक्त दें। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर को पीटीआई के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार तमाम 1300 के करीब कारकुनान की जमानतें मंजूर कर दी। तमाम कारकुनान रिहा हो गए। जमानत वकला न्यासुल्लाह न्यासी, अंसर क्यानी और दीगर ने कराई। गिरफ्तार मुलजमान की दरख्वास्तें जमानत 10-10 हज़ार रुपये मचलकों पर मंजूर हुई हैं। पीटीआई एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मजमूई तौर पर 33 मुकदमा दर्ज थे। तमाम गिरफ्तार मुलजमान की दरख्वास्त जमानतें 10-10 हज़ार रुपये मचलकों पर मंजूर हुई हैं। आगे बढ़े, आपको बताएं टैक्स आमदन ना बढ़ा सके तो तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स बढ़ेगा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है मौशी इस्लाहात जारी रखेंगे, गफलत की गुंजाइश नहीं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि पेंशन में इस्लाहात करने की जरूरत है। मौशी इस्लाहात के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने कहा मुल्क का टैक्स रेवेन्यू 9.4 ट्रिलियन है और मुल्क का 9 ट्रिलियन ज़ेर गर्दिश करेंसी है। जैसे इसको तब्दील करने की कोशिश करेंगे तो मसाइल होंगे। अगर टैक्स रेवेन्यू इस मरतबा ना बढ़ा सके तो तनख्वाहदार तबके और सनतों पर टैक्स बढ़ेगा। वज़ीर ख़जाना का मज़ीद कहना था तहकीक में हुकूमत को भूल जाएं। इस हवाले से निजी शोबे को किरदार अदा करना होगा। हुकूमत के कितने तहकीकाती इदारे हैं, अगर वो तहकीक कर रहे होते तो ज़राअत कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है।
नेपरा ने कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली की कीमत ₹1.28 फी यूनिट सस्ती कर दी। नेपरा ने बिजली की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली की कीमत में तनासली सितंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की मद में की गई। बिजली सार्फिन को कीमत में कमी का रिलीफ नवंबर के बिल्स में मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी का इत्तला के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। CPPA ने 71 पैसे फी यूनिट कमी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दी गई। 6 शराहों की तामीर के लिए 6 अरब 63 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। काबीना के फैसलों के तहत लाड़काना डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरप्लस पोल में भेजे गए मुलाजमीन की तनख्वाह और दीगर वाजिबात की अदायगी के लिए 8 करोड़ 19 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। काबीना ने जामशोरों में बिजली के फराहमी के प्रोग्राम के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए की भी मंजूरी दी गई। फेयर हॉल में अदबी का कॉन्फ्रेंस के लिए 40 लाख रुपए भी मंजूर किए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने महकमा इत्तलात साइंस और टेक्नोलॉजी को IBA के ताउन से सिंध जॉब पोर्टल के क़याम की भी मंजूरी दे दी। सर्दियों की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात की मांग में इजाफा, ड्राई फ्रूट्स की दुकानों की रौनकें बढ़ गईं। कोई बादाम खरीद रहा है तो कोई पिस्ता और काजू। इस हवाले से देखते हैं इस्लामाबाद से रिपोर्ट। सर्दियां हो या गर्मियां, अगरचे खुश्क मेवाजात की मांग सारा साल रहती है, लेकिन सर्दियों में इनकी मांग में इजाफा हो जाता है। लोग पिस्ता, बादाम, काजू, मूंगफली और जलगोजे खरीदने के लिए बाजारों का रुख करते हैं। लोगों का कहना है कि कीमतें ज्यादा होने की वजह से खुश्क मेवाजात की खरीदारी सोच समझ के करनी पड़ती है। ड्राई फ्रूट की डिमांड जो है बढ़ भी गई है और वैसे बड़ा अच्छा है। हमारे तो घर में सारे इस्तेमाल करते हैं, बड़े भी खाते हैं, बच्चे भी खाते हैं। दिल तो करते हैं कि बंदा ले ले, लेकिन असल में मसले पैसों का भी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम ले लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इजाफा आ गया। दुकानदारों का कहना है सर्दियों में ग्राहकों की तादाद में इजाफा हो जाता है। हमें भी ड्राई फ्रूट्स महंगे दामों ही मिलते हैं। लोग तो ज्यादा आता है, लेकिन आजकल तो महंगाई बहुत है, चीज महंगा आता है, टैक्स से बढ़ा हुआ है, एक मोटर भी ज्यादा टैक्स आता है। ड्राई फ्रूट्स की डिमांड में काफ़ी सारा इजाफा हो चुका है, जैसे कि मौसम सर्दियों का आ रहा है और ये मौसम ज़्यादा लोग एंजॉय करते हैं खुश्क मेवाजात के लिए। शहरी जहां ड्राई फ्रूट्स की खरीदारी में मसरूफ नजर आते हैं, वहां वो महंगाई का शिकवा करते भी दिखाई दे रहे हैं।